جی بسم اللہ۔ جی متوجہ ہو جائیے آپ لوگ۔ امید ہے جو آن لائن اٹینڈ کر رہے ہیں آواز آ رہی ہوگی، اسکرین نظر آ رہا ہے۔ جی دھیان دیجیے آپ۔ ہم لوگ پچھلے کلاس میں ہم لوگ کر رہے تھے کیا، علم کی تعظیم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اور جس میں ہم لوگ تیسرے پوائنٹ میں پہنچے تھے، طلب علم میں اخلاص ضروری ہے۔ اور اخلاص کیسے پتہ چلے گا کہ انسان کے اندر اخلاص ہے کہ نہیں؟ اخلاص انسان کے اندر ہے کہ نہیں کیسے پتہ چلے گا؟ چار باتوں کو اہل علم بتاتے ہیں۔ اگر چار باتیں ہیں اپنے اندر میں، ہمارے اندر میں، تو ہم مخلص ہیں۔ اگر چار باتیں نہیں ہیں تو پھر اخلاص کی کمی ہے، انسان اپنے آپ کو کیا کرے؟ چیک کرے۔ ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ایک انسان یہ نیت کرے، سب سے پہلی نیت کیا ہونی چاہیے کہ اپنے اندر سے کیا کرنا ہے؟ جہل کو ہٹانے کی نیت کرنی ہے۔ اپنے اندر سے جہل کو ہٹانا ہے۔ طلب علم کا مقصد یہ کہ انسان اپنے اندر سے جہالت کو ہٹائے، مانے اسلام انسان اپنے اندر کیا کرے؟ ہدایت کو بھرے، اور قرآن علم کو اپنے اندر لائے، جہالت کو ہٹائے۔ ٹھیک ہے؟ یہ سب ہونا چاہیے کہ علم حاصل کر رہے ہیں ہم کیوں؟ تاکہ میرے اندر جو ہے جہالت وہ ختم ہو جائے، اپنے اندر سے جہل کو ہٹانے کی، دور کرنے کی نیت کرنا۔ ٹھیک ہے؟ اور جس میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ جس میں انسان کو کہتے ہیں جو سب سے اہم ہے اس کے لیے وہ پہلے انسان کیا کرے؟ سیکھے۔ ٹھیک ہے؟ سب سے اہم کیا ہے انسان کے لیے؟ اللہ کی عبادت۔ اللہ کی عبادت کرنے کے تک سے انسان کو سب سے پہلے وہ علم حاصل کرنا چاہیے، ان باتوں کو جاننا چاہیے جس کا تعلق اللہ کی عبادت سے۔ یعنی انسان سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کرے، عقیدہ اللہ کے تعلق سے کہ ہمارا رب کون ہے، اب اللہ کی عبادت کیسی کرنی ہے، کون سی عبادت قبول ہوتی ہے، مطلب یہ سب جو بھی ٹاپک ہے اس میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اللہ کے بارے میں ایمان، اللہ وجود پر ایمان، اللہ کی ربوبیت پر ایمان، اللہ کے اسماء و صفات پہ ایمان، یہ سب ٹاپک اس میں آئے گا۔ ٹھیک ہے؟ جو اللہ کو جتنا جانے گا اللہ کی عبادت ویسے ہی کر پائے گا۔ ٹھیک ہے؟ یہ کچھ عربی کا الفاظ بھی ہے، من کانا للہ، یا من کانا باللہ عارف، جو اللہ کو جتنا زیادہ جانتا ہوگا، کانا بھی اتقا، یا کانا بھی اخوف، وہ اللہ سے اتنا ہی ڈرے گا، کانا بھی، اور وہ اللہ کا تقوی اتنا ہی اختیار کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ کیا کرے؟ اللہ کی عبادت کے تعلق سے، یعنی اللہ کے بارے میں علم سب سے پہلے وہ حاصل کرے۔ اور اس میں وہ ساری بات آ جائیں گی جو اس کے فیلڈ کے تعلق سے ہے۔ اگر کوئی انسان تاجر ہے تو تجارت کا علم اس کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے سیکھنا۔ ٹھیک ہے؟ کسی کی شادی ہو گئی، شادی ہونے والی ہے، حقوق الزوجین سیکھنا ضروری ہے کہ میاں یا بیوی کے حقوق کیا ہے، شوہر سیکھے کہ بیوی کا مجھ پر کیا کیا حق بنتا ہے، اور بیوی سیکھے کہ شوہر کا کیا کیا حق مجھ پر ہے۔ ٹھیک ہے؟ انسان یہ نہ سیکھے کہ بھائی میں شوہر ہوں تو میرا کیا کیا حق بنتا ہے، دیکھیے میری بیوی پورا کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی۔ نہیں، پہلے ضروری ہے کہ دیکھو کہ تمہارا کیا کیا حق بنتا ہے تمہاری بیوی پر، اور بیوی دیکھے یہ نہیں کہ میرا کیا کیا حق بنتا ہے، نہیں، بیوی پہلے یہ دیکھے کہ میرے شوہر کا کیا کیا حق بنتا ہے مجھ پر۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے، یہ اسٹارٹ ہونا چاہیے، یہ پکڑ جس پر ہے، جس پر پکڑ ہے اس کو چاہیے کہ پہلے وہ دیکھے، اپنے آپ کو بری کرے، جہنم سے اپنے آپ کو دور کرے، اپنے آپ کو جنت کے قریب کرے۔ طریقہ یہ سب سے پہلے مجھ پر کیا کیا فرض ہے، واجب، اس کو پہلے دیکھے، نہ کہ وہ کہ مجھ کو کیا کیا بینیفٹ ملنا چاہیے۔ نہیں، میرا ہاتھ جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن مجھ پر کیا کیا ہے وہ سب نہیں جانا چاہیے، وہ ہم کو پورا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ، یہ اسکل، یہ اگر جس کے پاس میں ہے تو اس کو نسخہ مل گیا کیا
शादीशुदा जिंदगी कैसे गुजारना है, झगड़ा नहीं होगा, होगा तो जल्दी सुलझ जाएगा। तब जब इंसान ये देखेगा कि मुझ पर क्या क्या हक है, ना कि मेरे लिए क्या क्या होना चाहिए। नहीं, ठीक है, ये होना चाहिए, जरूरी है। तो इस तरीके ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, इन चीजों का इल्म भी हासिल करना इंसान की जरूरी हो जाएगा। ठीक है, और अब ये थे अमर और मकासिद, इसको भी रिपीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इन चीजों को भी जानना चाहिए हम लोग। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कौन सा? हाँ, वो हम लोग पिछले क्लास में किए थे, अब इस पे हम लोग नहीं जा रहे हैं। ठीक है, मकसद माने हिकमत, हिकमत मकसद। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ये समझ गए हम लोग। तो इंसान को चाहिए कि अपने अंदर से जहल को दूर करने की नीयत करे इंसान। ये मेरा इल्म हासिल करने का टॉप प्रायोरिटी है कि अपने अंदर से उनको जहालत को दूर कर। ठीक है, और नंबर 2 क्या है कि हमें चाहिए कि दूसरों से भी हम जहल को दूर करने की नीयत करें, कि सिर्फ मेरा ही फायदा ना हो बल्कि मेरा इल्म दूसरों तक भी पहुंचे, कि दूसरों को भी ये बात हम बताएं। ठीक है, ये भी जरूरी है। ये कैसे होगा? बितालीमिहिम, इसको अरबी में कैसे, रफुल जहली, जहल को हटाना, अनिल खल्क की, खल्क से, मखलूक से जहल को हटाने की नियत। ठीक है, जैसे बितालीमिहिम, उनको तालीम देना हो, और वह इरशाद, और उनको हिदायत हिदायत देने, बुलाना, लिमा फीही, उस चीज की तरफ में क्या सलाह हो, सलाह है, फायदा है, किसका? दुनिया हो व आखिरत, उनकी दुनिया और आखिरत के लिए फायदा है, उन चीजों की तरफ लोगों को बुलाना। तो हमें क्या करनी है? उन चीजों की तरफ लोगों को रहनुमाई करनी है, जिस तरफ लोगों को बुलाना है, जिसमें क्या उनकी दुनिया और आखिरत के लिए क्या हो, फायदा, दुनिया में फायदा हो, आखिरत में फायदा, दोनों। ऐसी चीजों की तरफ बुलाना जिसमें उसका आखिरत भी संवर जाए, दुनिया भी संवर जाए। ठीक है, ये फिक्र होनी चाहिए हमारे अंदर। ठीक है, कि हाँ, जी, हाँ, सही है। लोगों को नमाज के लिए बनाना अच्छी चीज है। लोगों को नमाज के लिए बनाना क्या है? सही चीज है। वो चाहे कोई अगर बेनमाजी है, उसको नमाज के लिए बुलाना सही चीज है। लेकिन सिर्फ नमाज ही नहीं, नमाज के पहले अगर कोई शिरक करता है तो उसका शिरक को भी दूर करना चाहिए। ठीक है, नमाज की तरफ आप बुलाए बुलाए, लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि कोई फला शख्स शिरक करता है या बिदत का इर्तिकाब, बिदत कर रहा है, तो उसको शिरक और बिदत का भी इलाज करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो उसको शिरक, उसके शिरक और बिदत। जी, आवाज आ रही है ना? जी, आवाज आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है। ठीक है, तो नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपके आपके सवाल में इंशाल्लाह बाद में। ठीक है, तो क्या करना है? हाँ, दूसरी नियत क्या है कि दूसरों से भी जहल को क्या करना, हम लोग को हटाएं, उनको डायरेक्ट करना, बुलाना उन चीजों की तरफ लोगों को जिसमें उसकी दुनिया और उनकी दुनिया और आखिरत के लिए क्या हो, फायदा हो। ठीक है, तो कहना है कि यहाँ पर एक लफ्ज है जो कह रहे हो कि हटाना, रफा मतलब क्या होता है? रफा माने उठाना, उसको, लोगों को क्या करना, लोगों के अंदर से लोगों के जहल को दूर करना। ठीक है, ये मकसद नहीं होनी चाहिए कि हम खुद उड़ जाए। मकसद क्या होनी चाहिए थी? मकसद ये नहीं कि हम उठ जाए, माने मैं बुलंद हो जाऊं, ये मकसद नहीं, कि मैं सीट पे हो जाऊं, मैं टीचिंग के मनसब मकाम पे फायज हो जाऊं, ये मकसद नहीं, कि मैं उठ जाऊं, मैं खुद ऊंचा हो जाऊं, बुलंद हो जाऊं, नहीं, बल्कि क्या मकसद होनी चाहिए कि तालिब इल्म, स्टूडेंट है, या जो भी मेरा भाई है, मेरे रिश्ते, मेरे दोस्त है, उनके अंदर से जहल को, जहालत को दूर करना है, वो ऊंचा हो जाए। मैं ऊंचा नहीं हो जाऊं, बल्कि वो जहालत को छोड़ करके इल्म को पा करके वो ऊंचा हो अल्लाह की निगाह में। मकसद ये नहीं कि मैं खुद ऊंचा हो, मुझे सीट मिल जाए, मुझे शेख कहलाने लगे लोग, ये मुमकिन नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, बल्कि क्या, दिल में लोगों के लिए दर्द महसूस करना कि ये गुमराही पर है, चाहे गुमराही शिर्क के दर्जे की गुमराही हो या गुनाह की गुमराही हो, जो भी गुमराही, मेरे दिल में एक दर्द इंसान महसूस करे, फिक्र हो उनके लिए, उनकी हिदायत के लिए,
ये गुमराह, तो कैसे हम क्या करें, अल्लाह के रास्ते पे लेकर के आए, कैसे उसके सही, कैसे उनको सही की तरफ लेकर के आए, ये फिक्र होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए। अगर आप में से कोई पढ़ाते हैं या पढ़ा रहे हैं, जो भी है, ये हम लोग को फिक्र होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि बस कि हमको ये 100, बस एक 10, 2 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, क्या फायदा पड़ा कि नहीं, 100 पढ़े, एक पढ़े, हमें क्या करना है, दिल से पढ़ाना, चाहे 100 चाहे एक, ये हम लोग का क्या होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, और ये है कि दूसरी क्या होगा, माल के लिए नहीं, लालच, लालच के लिए हम नहीं पढ़ाएंगे कि मुझे पैसा नहीं देता तो क्या पढ़ाएंगे, नहीं, ये फिक्र नहीं होनी चाहिए। बल्कि फिक्र यह हो कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, फिक्र क्या हो कि मैं पढ़ाऊंगा ऐसे ही, लोग पैसा देना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जी हम लोग को पढ़ाना किसके लिए, नियत क्या है कि लोगों से जहल को हटाना है, जहालत को हटाना ही मकसद होनी चाहिए। हमारे हमारा मकसद क्या होना चाहिए कि जहल, लोगों से जहालत को हटाना, ये नहीं कि खुद माल कमाना, खुद सैलरी कमाना, खुद ये लेना, ये नहीं होना चाहिए। वो कम देता है तो क्या पढ़ाएंगे, नहीं, तो क्या सिखाएंगे, नहीं। हमारा मकसद क्या है, माल कमाना, शोहरत पाना नहीं, बल्कि क्या मकसद है, जहालत को दूर करना, उनके लिए खैर चाहना, उनके लिए दर्द महसूस करना, ये होना चाहिए। ठीक है, 5 मिनट बाकी है। ठीक है, तो ये मकसद हमारा होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो ऐसा अगर फिक्र होगा ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस्तिकामत अता करते हैं, ऐसा फिक्र होगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करते हैं, इस्तिकामत जमा देते हैं दीन पर। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहमत देते हैं, और मजीद इल्म मिलती है, मैंने मजीद इल्म और मिलेगा। ठीक है, जो बातें हम नहीं भी जानते होंगे, हो सकता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको उसकी तरफ हिदायत देगी, नई बातें मालूम होंगी, फिर उस पर अमल करने की तौफीक मिलेगी हमें। समझ रहे हैं, ये चीज है। तो ये बड़ा अहम है। ठीक, उम्मीद है कि समझा पाए आप लोगों को, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ये पढ़ने का दो, अब दोनों को मिला सकते हैं हम लोग, तो चाहे पढ़ा रहे हो या पढ़ रहे हो, मकसद क्या होना चाहिए हमारा, हाँ, अब जहालत को दूर करना, कोई मकाम, मनसब, औहदा, माल, शोहरत के पीछे भागना, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, माल और शोहरत के पीछे भागना, हरगिज हमारा ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इससे एक ताल्लुक, एक कुछ जुड़ा हुआ है, इसको इसको आपको पढ़ाने में तस्मिया में अभी आ गया वही टॉपिक, इसको यहाँ पर दिखा दे रहा आप लोग को, इसको स्क्रीन को ये कर रहे, ठीक है, थोड़ा चेंज कर रहे, दूसरा स्क्रीन ला रहे हैं, अगर ये नजर आ रहा है ना आप लोगों को, देखिए ऑनलाइन जो देख रहे हैं, नजर आ रहा है आप लोगों को, स्क्रीन चेंज किए हैं जी, ऑनलाइन ये हदीस दिख रही है आप लोगों को। हाँ, तिरमिजी की हदीस है, ठीक है। हाँ, क्या हदीस है, यहाँ पे ये ज़िबानी का वर्ड देखिए क्या है। थोड़ा सा स्क्रीन हेजी हो जा रहा है। ठीक है, लफ्ज देखिए, अच्छा ये लफ्ज का मतलब क्या होता है, कौन बताए, ज़िबुन मतलब क्या होता है, ज़िबुन, ज़िब कहाँ है, ज़िब कुरान में कहाँ पर है, ज़िब। ठीक है, ज़िब माने, ज़िबुन कौन सा जानवर, ज़िब मतलब भेड़िया, वुल्फ, कहाँ पर है भेड़िया कुरान में जिक्र, भेड़िया का जिक्र सूरह कौन सी कुरान यूसुफ। में कुरान में, सूरह यूसुफ में, बहुत अच्छा, ठीक है, सूरह यूसुफ। बहुत अच्छा, बहुत गलत, ज़िबुन। ठीक है, इसका तस्निया क्या होगा, दो भेड़, हाँ, ज़िबानी, देखानी। हाँ ज़िबानी, ठीक है, ज़िबानी। यहाँ पे देख रहे क्या है, नजर आ रहा है, आप लोग जूम कर, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं जूम में, तो आप जूम कर सकते हैं, अपने दो फिंगर को यूज करके जूम कर सकते हैं। ठीक है, ज़िबानी देख रहे हैं, ज़िबानी, उसके बाद जायान, जायान, जायान मतलब होता है भूखा, जायुन, जायानी दो भूखे, जायान, तो ये दोनों नाक मंगे, ज़िबानी, जायान, ठीक है, जाई ये हमजा है, जाई आन,
ठीक है, जायान, हंगरी, ठीक है, हंगरी वुल्व्स हो गया, ये भेड़िया, ठीक है, रिबानी जायान, रिबानी जाई आनी, ठीक है। तो क्या रहा है, माज इबानी जाई आनी उर्सिला फी गनमिन फी अफसलहा मिन हिरसिल मरई अलल माली वशरफी लिदीनी। ठीक है, तर्जमा इंग्लिश में देख रहे हैं आप, तो क्या है, टू वुल्फ फ्री amongst तर्जमा भी ठीक से नहीं किया, नो मोर डिस्ट्रक्टिव टू देम देन अ मैन्स डिजायर फॉर वेल्थ एंड ऑनर इज रिलीजन, ठीक है। अच्छा, मतलब क्या है, दो क्या है, दो भूखे भेड़िए, ठीक है, छोड़ दिया जाए, उर्सिला मतलब होता है उर्सिला, जिसको छोड़ दिया जाए, कहाँ पर छोड़ दिया, फी गनमिन, भेड़ियों के फ्लॉक के बीच, माने गनम माने भेड़ के फ्लॉक के बीच, माने बकरी है उसके बीच में, बकरी का पूरा ये झुंड है, उसमें छोड़ दिया जाए अगर, ठीक है, तो कहते हैं बी अफसदा, मैंने ज्यादा तबाही नहीं मचाएगी, दो भेड़िए, भूखे भेड़ियों को अगर छोड़ दिया जाए बकरियों के बीच में, बकरियों के रेवड़ के बीच में छोड़ दिया जाए, तो ज्यादा तबाही नहीं मचाएंगे, किससे ज्यादा तबाही नहीं मचाएंगे वो, मिन हिरसिल मरई, जितना तबाही होगा, जितना तबाही हो, जितना डिस्ट्रक्शन होता है किसमें, ये हिरसिल मरई, मर माने आदमी, आदमी का हिर्स करना, आदमी का लालच करना किस पर, अलल माल, माल पर, व शर्फ, शर्फ माने हाँ इज्जत, यानी शर्फ माने फेमस, शोहरत पर, ठीक है, ली दीन, जितना स्टेटस। नुकसान, जितना नुकसान पहुंचाती है, एक दो भेड़िया जितना नुकसान तबाही पहुंचाती है इसको, बकरियों के रेवड़ को, ठीक है, उससे ज्यादा तबाही कौन पहुंचाता है, हाँ इंसान का हिर्स करना, इंसान का हिर्स रखना किस पर, इंसान का माल और शोहरत के पीछे भागना, जितना दीन को नुकसान पहुंचाता है वो ज्यादा नुकसान पहुंचाता है दीन, ठीक है, मतलब इंसान का लालच करना, माल के लिए भागना, शोहरत के पीछे भागना, ये ज्यादा नुकसानदेह, जितना भेड़िया नुकसान करेगा बकरी को उससे ज्यादा नुकसान क्या है, माल और शोहरत करेगा, क्योंकि माल और शोहरत लॉस करेगा, नुकसान करेगा क्या, जिसको, उसके दीन को आएगा, दीन दीन को नुकसान पहुंचाएगा, तो वही तर्जमा दिया हुआ है कि मोर, ठीक है, नो मोर, माने ज्यादा डिस्ट्रक्टिव यही है, ठीक है, ज्यादा खतरनाक, ज्यादा डेंजर ये है कि इंसान माल और शोहरत के पीछे भागे, ठीक है। अब वो ये देखिए कंपेयर किया जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन टीचर थे, आज ये सब टीचर टीचिंग का स्टाइल पढ़ाया जाता है कहाँ पर, यूनिवर्सिटीज में, कि बेहतरीन टीचर कैसे होता है, बेहतरीन टीचर मिसाल को समझाता है, मिसाल दे दिया जाता है, ये पढ़ेंगे किताबें, उलमा ने किताबें लिखी हैं कि कितना इस्लाम में हमारे नबी वसल्लम कितने बेहतरीन टीचर थे, टीचर का क्या क्या टेक्निक्स था, तो टीचर को वाकई किसी टीचर कैसा होना चाहिए, वो पढ़े टेक्निक्स को हदीसों से निकाल के बताएं, ये पढ़ाने का टेक्निक है, जिन्होंने कुफ्फार जो आप सिखाते हो हमारे दिन में पहले से ही है, ये टेक्निक के तरीका है, ये पढ़ाने का तरीका है, तो मिसाल से जहन में चीजें पता चल जाती, मिसाल दे दी गई, दो भेड़िया अटैक कर रहा है जाके बकरियों पर, नुकसान हुआ, तबाही मच गया, बकरी की जान चले गई, अल्लाह के दुश्मन कहते हैं ये ये तो देख लिए, अब इंसान का जो लालच करना, माल के पीछे भागना, शोहरत के पीछे भागना, ये कम तबाही नहीं मचाता है बल्कि ज्यादा तबाही मचाता है, क्योंकि दीन उसका लॉ, दीन में असर पड़ता है, ठीक है। अब इसको कैसे जोड़ना, हम लोग को इल्म को पढ़ना पढ़ाना, इल्म को पढ़ना पढ़ाना माल के लिए नहीं होनी चाहिए, देखिए हम लोग, और ना ही किसके लिए होनी चाहिए, शोहरत के लिए, यहाँ पे शर्फ किया हुआ, शर्फ ले लो, इल्म को पढ़ना पढ़ाना माल, ना माल लेना, शोहरत शर्फ के लिए, इज्जत के लिए, इसके लिए नहीं, इल्म को पढ़ना पढ़ाना, ये मकसद नहीं होनी चाहिए, हाँ, ये जहालत को दूर करना मकसद है, ठीक है, माल और शर्फ की, शोहरत के पीछे भागना मकसद नहीं है, समझ रहे हैं, ये हमारे लिए क्या है, जरूरी इन बातों को जानना,
ये इंसान अगर है कि नियत, इंसान चाहता है कि हमारी नियत सही हो, तो उसको चाहिए कि इन चीजों पर क्या करे, अमल करे। देखिए हमारी नियत क्या है, क्या हम माल के लिए हम दीन सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं? नहीं, माल ही हमारा मकसद है। क्या माल ही, अभी टॉपिक वो चीज का नहीं है, लेकिन हम बताते हैं अभी इस पे, लेकिन बाद में ये बताएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब देखना चाहिए माल हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, ठीक है। माल हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, शर्फ हमारा मकसद, फेमस होना मकसद हमारा नहीं होना चाहिए। माल मिल गया, फेमस हो गया, वो साइड इशू, लेकिन मकसद कभी ये नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? ठीक है। तो ये हमको चाहिए कि इस पर क्या करें, ज्यादा वो ध्यान दे, ठीक है। और इस पर बस तो 3 मिनट हम लोग सॉल्व लेंगे, ठीक है। तो वापस हम लोग जा रहे हैं उसी में। उसके बाद एक तीसरा चौथा पॉइंट है ना, चौथा हम लोग आज ये नहीं करेंगे, ठीक। तीसरा चौथा को देख लेते हैं। हाँ, अब तो पता पता चल गया कि इखलास के लिए क्या जरूरी है। दूसरों, अपने अंदर से जहल को हटाने की नियत करना, दूसरों से जहल को हटाने की नियत करना, और क्या बचा, और भी बचा क्या, इल्म को जिंदा रख, यानी इल्म की हिफाजत करना जाय होने से। इल्म को जिंदा रखने की एक मकसद होनी चाहिए, इल्म जिंदा रहे, इल्म जाय ना हो। इल्म की हिफाजत करना, इल्म की हिफाजत कैसी होती है, हिफ्ज कर माने हिफ्ज करना, याद करना। इल्म जो सीख रहे उसको क्या करना, याद करना भी जरूरी है। याद कैसे होता है, दो तरीके से, दिमाग से, यानी दिल और दिमाग से, और लिख करके। दो तरीका याद करने, एक होता है जहन में याद करना, दिमाग में याद करना, एक होता है क्या, लिख करके याद करना, ठीक है। तो याद करने का दो तरीका होता है, जिसको अल्लाह ने जितना कुवत दिया उस तरीके से क्या करे, वो याद करे, ठीक है। इस पर एक्सप्लेनेशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास करेंगे, आज टाइम निकल गया है। इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे कैसे, इसमें क्या, क्यों याद करना जरूरी है, क्या फायदा होगा याद करने, ठीक है। तो उसमें लेकिन इंशाल्लाह कुछ ऐसा नुकता है बहुत जरूरी है, हर खास कर इसमें बताते हैं, अभी वक्त नहीं है। लिबरलिज्म सेक्युलरिज्म जिस तरीके से अटैक कर रहा है आज हमारे दीन में, उसके लिए बहुत जरूरी है चीज को करना। कैसे हम दिफा कर सकते हैं, किस तरीके से लिबरल सोच हमारे में पैदा हो रही है, किस तरीके से मुसलमान जो है आज बहक रहे हैं, भटक रहे हैं, इसके लिए जरूरी है ये तीसरा नुकते कैसे, तो कैसे ताल्लुक कैसे है, तो बड़ा अहम है, फिर नेक्स्ट क्लास को जरूर सुनिएगा, ठीक है आप लोग इंशाल्लाह। उसके बाद इल्म पर अमल करना, इल्म सीख रहे हैं तो एक नियत क्या होनी चाहिए कि इस पर हमें क्या करना है, अमल करना है, अमल करना है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इस दोनों इन दोनों का खुलासा नेक्स्ट क्लास में इसको क्लास में एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम लोग के लिए अरबी को सीखना, दीन इस्लाम को सीखना समझना और उनको दूसरों तक फैलाना आसान करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी गुनाहों को मग़फ़िरत करे। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।